Good morning everyone. We are going to practice the questions on plant breeding. There will be a total 90 questions. So you can pause the video while reading the question and choose the option, give the answer, and while I will give the answer you can verify with it. Okay. So starting with the first question. This is the first question. An improved variety is always superior to the other existing varieties, inferior to the other existing varieties, may be superior to the other existing varieties, or more than one option is correct. So improved variety means exotic varieties. Another word is exotic. Exotic. So correct answer will be this one because they are superior to their other existing varieties. Then question number 2. A pure line is obtained through mass selection, clonal selection, domestication, or inbreeding. So with the help of inbreeding, and pure line is going to obtain. Means like self-pollination give rise to pure line varieties. They are genetically same like that. Question number 3. Pure line varieties of wheat is Sonora 63, Sonora 64, HUW 468, or all of the above. Correct answer is this one was the pure line variety of wheat. Next question. Wheat variety which was introduced earlier as resistant to leaf rust disease but became susceptible to same yeast. So which one was that variety? Kalyan Sona, Larma Rojo, Sonora 64, or Sharbati Sona? So correct answer will be this one. Kalyan Sons. Kalyan Sona. Then question number 5. Picking up cross-pollinating plant with the superior phenotype for further propagation is mass selection, pure line selection, hybrid Weichert, or introduction. So correct answer will be this one, mass selection, because cross-pollinating plant with the superior phenotype. Phenotype means we know external appearance of an individual. Then emasculation is required for. E means removal, masculine, muscular, powerful male. The removal of anther is required what? So pure line, selective hybridization, self-pollination, or inbreeding. So correct answer will be this one, selective hybridization, because we are going to produce a good quality of that particular breed of plant. So for that emasculation is going to happen so that when the male is removed, the other plant which is a male from there, the plant with the good characteristic, their pollen grain is taken and that will be dusted on this plant which is already bisexual. So when the anther is removed, it will become unisexual. Then bagging is done so as to avoid unwanted pollen grain fall on that particular plant, and the pollen grain of plant with a good characteristic is dusted on that plant. Then question number 7. So correct answer was 2. 7. Which was the first Indian dwarf umber grained variety of wheat which is made from Sonora 64 by Gamma rays? So which variety? Sonalika, Sharbati Sonora, Kalyan Sona, or HUW 468? So correct answer will be this one, Sharbati Sonora. This was the grain variety of dark dwarf umber grain variety of wheat which is made from Sonora 64 with the help of mutagen, that is gamma rays. Then evaluation is done by which organization? So here the names of organization is given, like IRI is there. IRI means the Indian Agricultural Research Institute, that is called as IRI. Then IBRI is there, ICAR is there, RRI is there. So correct option will be this one. Third, ICAR. ICAR means Indian Council of Agricultural Research. Indian Council of Agricultural Research. This institute. Then next, the gene responsible for the dwarfing of wheat. So which gene is responsible? DGO gene, Norrin10, or Cry gene, or Yanodi gene? So correct answer will be this one, Norrin10. For dwarfing, this gene is responsible. DGO gene, this gene is for rice. Cry gene is a crystal protein. Protoxin means produced from BT, Bacillus thuringiensis, and when means we can make the plant resistant to insect with the help of this gene. And NOD gene, NOD is a short form of nodule. Nodule, CRAM is crystal,
This is non-intent for wheat and this is for rice. Then next question, the crop where hybrid varieties has been utilized most is the rice, maize or barley or oat. So which one will be the correct answer? This one. For maize it is going to use hybrid varieties. Then next question, question number 11. Which of the following is chemical mutagen? Mutagen means the substance which can induce a mutation is called mutagen. So which one will be the correct mutagen? Ethyl methane, sulfonate and oxalase, sodium acid. These are physical mutagen. Race means physical. Ethyl methane, sulfonate and sodium acid. These are chemical. Means this will be the option. Number 3. X-ray, gamma ray, UV rays, all kind of rays generally they are included under the physical mutagen. Physical mutagen. Physical mutagen. Ionizing or non-ionizing radiations. Question number 12. The scented basmati rice is the contribution of Dr. Norman Borlaug, B.P. Paul, M.S. Swaminathan or Dr. A.K. Singh. So what will be the correct answer? This one. Dr. M.S. Swaminathan. Scented basmati rice variety. Which of the following is an example of intergeneric hybridization? Intergeneric means in between two different genera. And option is Triticale, Raphanobrassica, Gossypium hirsutum, or more than one option is correct. So what will be the correct answer? This one. All are correct. Means more than one is correct. Next, question number 14. The dark wheat variety brought from Mexico into the India where, which was the dark wheat variety? Dark wheat variety कौन सा था? तो वो देखने का Sonolica and NP8 360, 36, Sharbati Sonora and Pusa Lerma, Sonora 64 and Lerma Rojo 64, then Sharbati Sonora 64 or HU and HUW 468. So what will be the correct answer? This one. Sonora 63 or Sonora 64. 64 का मीनिंग होता है ईयर का है ये ईयर इंडिकेट करता है. एंड लर्मा रोजो 64. These were the wheat varieties took from Mexico into India. From Mexico, this scientist was there, Norman E. Borlaug in Mexico, and to the India brought by Dr. M.S. Swaminathan. This dark variety of wheat. Remember the name Sonora 64 and Lerma Rojo 64. Then question number 15. Maize is rich in thymine, lysine, tryptophan or alanine. It is rich in the amino acids. These are the amino acids. Lysine, this one, these are the amino acids. Actually, maize is rich in the thymine also. Thymine is nothing but the vitamin B1, thymine. Then bred wheat is diploid, tetraploid, hexaploid or triploid. So what will be the correct answer? It will be hexaploid, containing 6 set of chromosome. Hexaploid. Hexa means 6. Then anti-nutritional neurotoxic factor called cyanoalanine is found in Brassica olecra, almond, seed of kesari or kidney bean. तो ये कहाँ पर मिलेगा? This will be found in, this toxic substance is found in the seed of kesari. Remember the name of toxin also. There is one more toxin, rixin and abyssine, which is obtained from the castor, which is 6,000 times strong, toxic, have lethal effect as compared to cyanide. Then question number 18. Atlas 66 wheat variety developed for means what was the purpose of this variety of wheat? High protein content, scented grain, checking resistant virus or vitamin C. So correct purpose for this Atlas 66 was high protein content. The next question, question number 19. Find out the odd with respect to green manures. Meliotus, Crotalaria, Jatropha or Trifolium. So this one will be the correct Jatropha, because if you saw my all previous lecture, you will come to know this Jatropha is utilized as biodiesel crop. Then question number 20. Late blight of potato
is caused by Fusarium Phytophthora infestis, Plasmopara viticola, and Alternaria solonea. So correct answer is this one, Phytophthora infestis. This is used. If you saw my lecture, previous lecture, or the lecture from the biological classification, there I discussed the fungi. So in that fungi you can find the slide, and this the name of this fungus is given, which caused the lead blight of potato. Potato become black colored from inside because of this fungus. Then question number 21, red rot of sugarcane is caused by what? Angunia triticum, Melaleuca incognitia, Calyptotricum fructum, or sugar mosaic virus. So this is, we know the name of this worm, Melaleuca incognitia. This also called as this also causes root canker. Root canker in case of tobacco. टोबैको में ये रूट कैंकर करता है, बट एट द सेम टाइम ये रूट नॉट के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और जो फंगस है ये फंगस भी क्या करता है, जो हम वो शुगर केन को कट करते हैं तो अंदर से रेड कलर का दिखेगा. रॉट मतलब सड़ जाना, खराब होना, तो जो रेड रॉट होता है वो फंगस की वजह से भी होगा. दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टर्निप मोजाइक एंड ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरा इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा ये mosaic and black rot? Bacteria and virus respectively, bacteria and virus respectively, bacteria and nematode respectively, virus and nematode respectively. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, वायरस और बैक्टीरिया, इनकी वजह से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, cereals and millets are mainly deficient in which amino acid? cereals और millet पूछा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मेथियोनिन एंड सिस्टीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, और बोथ ए एंड बोथ 2 and 3. तो ये भी कर रहता है, इसके अंदर ट्रिप्टोफैन भी रहेगा, ये दोनों अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, दोनों अमाइनो एसिड रहेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा दिस वन, 4 विल बी द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट, द यूज ऑफ कोल्किसिन माइटोटिक पॉइजन, इसका यूज कहाँ पर होगा? इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन, हैप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स, या हाइब्रिड या हैप्लॉइड. तो क्या आंसर है इसका? करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, पॉलीप्लॉइड. एंथर कल्चर में हमने देखा था, देखिए जो हैप्लॉइड प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर क्या करेंगे हम, कोल्किसिन इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे फिर पॉलीप्लॉइड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वैसे. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एन इम्पॉर्टेंट germplasm स्टोरिंग सेंटर इन इंडिया इज CDRI, FRI, ICRI, SAT और नीरी. तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है. देखिए जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लॉन्ग फॉर्म बोला था, ये CDRI क्या होता है, पहले ये लॉन्ग फॉर्म बोल दूंगा तो आपको इज जाएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज CDRI. उसके बाद पूछा आपको FRI, तो FRI अगर देखा तो ये है FRI, दिस इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून. दिस इज CDRI, दिस इज FRI. उसके बाद क्या बोला आपको, ICRI SAT, तो ये देखिए ये ICRI SAT, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो ये जो ICRI SAT देखे तो इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जो ICRI मतलब क्या था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैंने आपको बोला. तो रिमेनिंग रह गया यहाँ पर SAT का मीनिंग होता है यहाँ पर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स, SAT. और ICRI का इसका लॉन्ग फॉर्म मैंने आपको बोला था, क्या बोला था इसके अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो ये याद रखने का, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रहेगा. उसके बाद देखिए फोर्थ है नीरी ऑप्शन, NEERI, नीरी. अगर ये देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग फॉर्म क्या है इसका, नेशनल, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, वहाँ पर स्पेस करना, यहाँ पर मैं नीरी का लॉन्ग फॉर्म लिख रहा हूँ. ऊपर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है वहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ, यानी कि लॉन्ग फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो देखिए ये सब हो गए इसके इंस्टीट्यूट. तो इंपॉर्टेंट जर्म प्लाज्म स्टोरिंग, जर्म प्लाज्म का मीनिंग क्या होता है,
सेक्स सेल, क्योंकि बॉडी में 2 टाइप के सेल रहते हैं, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। जर्म सेल्स मतलब सेक्स सेल। तो ये जो सेक्स सेल है इसको स्टोर कहाँ पर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दिस वन, इंडियन काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एसएटी का लॉन्ग फॉर्म रहेगा सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्लोनल सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इज डन बाय अरुणा एंड एनपी 836, PV18 and Kalyan Sona, HUW 468 and Automata 2, Kufri Safe Potato and Bombay Nagal. तो करेक्ट आंसर है दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये है क्रॉप इंप्रूवमेंट जो क्लोनल सिलेक्शन करते हैं वो इनको यूज़ करेंगे। देन हाइस्ट यील्डिंग ग्रेन क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ग्रेन किसका मिलता है, तो मेज, बार्ली, व्हीट, राइस, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाइस्ट यील्डिंग ग्रेन है वो ग्रेन रहेगा मेस का, मेस। उसके बाद देखिए टिश्यू कल्चर इज रिकमेंडेड फॉर, ये किसके लिए रिकमेंड किए वाला है, तो ये किसके लिए रिकमेंड किए वाला है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइड, फाइटो रेमिडिएशन, जीन क्लोनिंग। तो मेनली टिश्यू कल्चर जो एम्प्लॉय होता है वो इसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। और क्या किया था यहाँ पर हमने देखा था कि जो प्लांट का ऊपर का ये जो शूट रहता है, ऊपर का अपाइकल मेरिस्टेम, दिस इज फ्री फ्रॉम पैथोजन, वायरस से भी, इवन इफ द प्लांट इज अफेक्टेड बाय एनी डिसीज। तो उसको लेकर हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर हम ऐसे प्लांट बनाएंगे जो कि रेजिस्टेंस बनेंगे अगेंस्ट डिसीज, वायरस डिसीज। फाइटो रेमिडिएशन मतलब प्लांट को यूज़ करना पोल्यूशन कम करने के लिए। इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइड मतलब समझ में आता है, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पॉलीप्लॉइड या जीन क्लोनिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, the optimum pH of a typical nutrient medium for the plant tissue culture is 2.5, 5.7, 7 और 7.8। तो मैक्सिमम जो हम यहाँ पर लेते हैं pH वो रहता है अराउंड 5.7 टिश्यू कल्चर के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं चाहिए। तो ये pH हम यूज़ करते हैं। टेम्परेचर नॉर्मल, pH, टेम्परेचर, ये सब क्राइटेरिया यूज़ हो गया यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 30, एन एम्ब्रियोइड्स, OID का मीनिंग होता है लाइक, एम्ब्रियो के जैसा। तो क्या रहेगा, सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप इन कल्चर, माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियो, मोनोजाइगोटिक एम्ब्रियो फॉर्म इन विट्रो कल्चर, हैप्लॉइड एम्ब्रियो। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, दिस वन, सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स जो डेवलप होता है फ्रॉम कल्चर। सोमैटिक, सोमैटिक मतलब अभी बोला हमने बॉडी सेल्स। देन एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज हो रहा है एम्ब्रियो कल्चर, तो ये अगर देखा जाएगा एस्टेब्लिशिंग ऑफ सस्पेंशन कल्चर, रिकवरी ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और हैप्लॉइड प्रोडक्शन। तो मेनली ये जो एम्ब्रियो कल्चर है ये यूज होगा फॉर रिकवरी ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। तो ये है करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 डिफरेंट सेल कैन बी मेड टू फ्यूज विद द हेल्प ऑफ, मतलब मैंने आपको बोला था वहाँ पर जहाँ पर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला था, तो फ्यूजोजेनिक केमिकल कौन सा रहता है, कौन से सब्सटेंस है, तो इसके अंदर मैंने आपको बोला था PEG, Na NO3 या इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकता है जिसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफ्यूजन। तो ये तीनों ऑप्शन आने चाहिए। तो अब इन तीनों ऑप्शन में देखिए कौन सा मैच हो रहा है, ओनली वन ही मैच हो रहा है यहाँ पर, PEG। तो आंसर ये रहेगा, बाकी के 3 आंसर मैच नहीं होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 33, germ plasm can be collected from many sources where the preferred source to develop the disease resistance is, क्या रहेगा, तो ऑप्शन रीड कीजिए, इम्प्रूव्ड वैरायटी, वाइल्ड रिलेटिव, लोकल वैरायटी और प्लांटेड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए वाइल्ड रिलेटिव, क्योंकि क्या कर सकते हैं हम, जो भी एक पर्टिकुलर प्लांट बनाना है हमको विथ ऑल गुड डिजायरेबल कैरेक्टर, तो उसके अंदर एकदम आर्टिफिशियल जीन इंट्रोड्यूस नहीं करना था। उसी प्लांट का कोई अगर वाइल्ड वैरायटी जिसमें अच्छे जीनोटाइप थे, अच्छे जीन थे, उनका जर्म प्लाज्म लेना पड़ेगा और इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए वाइल्ड टाइप रिलेटिव लेते हैं जो कि नॉन म्यूटेंट रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, a technique of androgenic haploid, andro means male, genic means birth, haploid formation was developed by which scientist, Carlson et al, Guha and Maheshwari, Halperin and Ritherell और Stewart and et al। तो क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, दीज 2 साइंटिस्ट फ्रॉम द राजस्थान, गुहा एंड माहेश्वरी। प्लांट कौन सा यूज किया था इन्होंने, दत्तुरा इनॉक्सिया।
तो इसको यूज़ करके इन्होंने ये एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बनाया था, जिसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड कल्चर और एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड या पोलन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूजफुल सोमा क्लोनल वेरिएशन इज, क्या रहेगा यहाँ पर, शिकोनिन डाई प्रोडक्शन, शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन शुगर केन, मेल स्टेरिलिटी, वाइट रस्ट रेजिस्टेंस इन क्रूसिफेरा। तो ये जो यूजफुल इसका अगर एप्लीकेशन देखें सोमा क्लोनल वेरिएशन का, तो ये रहेगा शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन इन शुगर केन। उसके बाद देखिए पूछा है साइब्रिड, वो जो हमने अभी देखा ना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो वो, तो साइब्रिड से क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर ये पूछा है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर ऑफ टू सोमैटिक सेल, ये गलत रहेगा। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू सोमैटिक सेल बट न्यूक्लियर रिमेन अनफ्यूज, तो ये अगर देखें तो ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू सोमैटिक सेल करेक्ट है। टू सोमैटिक सेल हमने इंटरजेनिक क्रॉस देखा था बिटवीन ब्रिंजल एंड टोमेटो, फिर पोटैटो एंड टोमेटो, ये सर पोटैटो एंड टोमेटो। तो यहाँ पर क्या करें, टू सोमैटिक सेल्स ऑकर बट न्यूक्लियस ऑफ वन सेल परसिस्ट एंड अदर न्यूक्लियस डिजेनरेट, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका थर्ड। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ये नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 37, परफेक्ट होमोजाइगस इंडिविजुअल, ये किससे प्रोड्यूस करेंगे, मेरिस्टेम कल्चर से हम वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एंथर कल्चर से प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड प्लांट, पोलर कल्चर एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट से नहीं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं, तो करेक्ट आंसर इसलिए रहेगा एंथर कल्चर। देन बोमैटो, अभी मैंने आपको एग्जांपल बोला था बोमैटो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिड है, पैरासेक्सुअल हाइब्रिड है, सेक्सुअल हाइब्रिड है, इंटरजेनिक हाइब्रिड, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका दिस वन, पैरासेक्सुअल हाइब्रिड बोमैटो। नेक्स्ट एससीपी, ये भी आ सकता है, देखिए इंटरजेनिक हाइब्रिड, क्योंकि पैरासेक्सुअल हाइब्रिड है, देखिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को हम पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। SCP, single cell protein, has the process to remove the excess of single cell protein, हम स्पिरुलिना, क्लोरेला, मिथिलोट्रोपस, मिथिलोफिलस, मिथिलोट्रोपस, इनको यूज़ करता है SCP प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है हम ये रिमूव करते हैं, प्रोटीन ये बाकी सब रिमूव नहीं करते, ये रिमूव करेंगे, तो आंसर आएगा दिस वन। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्ट वैरायटी ऑफ फ्लैट बीन्स, अगर इसमें देखा जाए तो कौन से इम्पोर्ट वैरायटी नहीं, ये वैरायटी नहीं थी इसकी, पूसा सवानी, बाकी सब ये अलग है, ये ऑप्शन मैच नहीं होंगे क्योंकि ये सब इम्पोर्ट वैरायटी में आता है, तो ये वैरायटी नहीं आएगी पूसा सवानी। अब देखिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है एग्रीकल्चर में, टू प्रोड्यूस द पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, टू डिक्रीज द सीड नंबर, टू इंक्रीज द प्लांट वेट, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन ये मैच होगा, क्योंकि हमको डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के फूड का क्वांटिटी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट का क्वांटिटी बढ़ाना है, तो मेनली ये करना है हमको पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करना। उसके बाद देखिए which one of the following is used in the manufacture of alcohol, bacteria, water mold, yeast और slime mold, तो हम इसमें किसको यूज़ कर रहे हैं, मेनली ईस्ट को, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, तो उससे प्रोड्यूस होगा अल्कोहल। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्कोहल फ्यूल, पेट्रोलियम, बायोगैस या फ्यूल, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए नॉन रिन्यूएबल बोले तो पेट्रोलियम, पेट्रोल का मीनिंग होता है रॉक, ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, क्योंकि एक बार इनका सोर्स अगर ये ख़त्म हो गया तो वापस इनको बनाना मुश्किल जाएगा, मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है ये एस्टिमेट किया है कि नेक्स्ट अपकमिंग 40-42 ईयर्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोलियम प्लांट, जीमेस, बीटा वल्गैरिस, इफुर्बिया लैथरिस, सोलैनम ट्यूबरसम, तो इसके अंदर आएगा ये करेक्ट आंसर बीटा वल्गैरिस, इसको यूज़ किया जाता है एज अ पेट्रोलियम प्लांट, क्योंकि बाकी जो वो एनर्जी क्रॉप में आता है, इफुर्बिया के भी वैराइटीज है, देखिए इफुर्बिया ऑस्ट्रेसी अस्कल्पिडीसी, ये भी प्रोड्यूस करता है, सोलैनम ट्यूबरसम ये तो पोटैटो, तो ये अल्कोहल में आता है,
ये मतलब एनर्जी क्रॉप में आएगी। और बीटा वल्गारिस जो है इथुर्बिया, तो इथुर्बिएसी फैमिली जो है वो भी काम को आती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, तो ये याद रखने का। देन पायनियर कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल अल्कोहल। अब देखिए इसके अंदर पूछा पायनियर कंट्री, तो जापान नहीं होगा, ब्राज़ील करेक्ट आंसर। अब ब्राज़ील क्यों आएगा आंसर, क्योंकि ब्राज़ील देखिए ब्राज़ील के बाजू का कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्नैक भी वर्ल्ड में वहीं पर मिलता है ब्राज़ील के अंदर, तो वहाँ पे शुगर केन का क्रॉप अच्छे से डेवलप होता है, इसलिए वो जो शुगर केन का क्रॉप अच्छा डेवलप हुआ तो शुगर केन से क्या करें अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, अल्कोहल को पेट्रोल के अंदर ऐड करके गैसोलीन बनाया जाता है, तो जो गैसोलीन रहेगा तो फ्यूल अल्कोहल पूरी तरह से पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। तो ये स्ट्रैटेजी इनकी अभी भी स्टार्ट है ब्राज़ील की, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फ्यूल अल्कोहल जो प्रोड्यूस करेगा वो ब्राज़ील करेगा। सऊदी अरबिया में तो ये पता है हमको यहाँ पर एक भी रिवर नहीं है, तो शुगर केन नहीं होगा प्रोड्यूस यहाँ पर। इंडिया डेवलपिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेट्रो क्रॉप्स बिलोंग टू द फैमिलीज, कौन से फैमिली को मोस्ट ऑफ द पेट्रो क्रॉप बिलोंग करते हैं, तो करेक्ट आंसर है इफ्रूबिएसी, अभी जो बोल रहा था मैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो इफ्रूबिएसी ये पेट्रोलियम प्लांट में आने चाहिए। उसके बाद देखिए हु क्रिएटेड विद द आइडेंटिफाइंग ऑफ पेट्रो क्रॉप्स, एम एस स्वामीनाथन नहीं, इनका रोल वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में, मैलिन कैल्विन ये करेक्ट है, C3 साइकिल और मैलिन कैल्विन इन्होंने बोला था अबाउट पेट्रो क्रॉप, क्योंकि बहुत सारे प्लांट है जो उनमें ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो पेट्रोल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कैस्टर देखते हैं हम, उसको ब्रेक किए तो उसके अंदर से मिल्क निकलता है लैटेक्स, तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चैन है जैसे पेट्रोल में होती है, तो इस कंसेप्ट पर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था। क्रेब नहीं आएगा, नॉर्मनी बोरलॉग हमको पता है कहाँ पर नाम आता है। Next question, question number 8. A widely cultivated rice plant which has solved the food problem in Asia has been developed by IRRI, International Rice Research Institute, Manila, Philippines. तो इन्होंने इसकी कौन सी वैरायटी प्रोड्यूस की थी, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर IR36, ये वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी। सेकेंडरी होम सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इथियोपिया, ब्राज़ील, सेंट्रल अमेरिका, इसमें प्रोड्यूस होगा ये यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए भी कॉफ़ी के लिए भी वाटर ज़्यादा चाहिए, जैसे इंडिया में देखो कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा किधर होगा, कर्नाटका में, कॉफ़ी कर्नाटका में जो पार्ट है जो कोस्टल एरिया की तरफ है जहाँ पे बारिश ज़्यादा आएगी वो साइड। विच आर द फॉलोइंग, क्योंकि मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में था तो उधर मैंने देखा है कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, उडुपी डिस्ट्रिक्ट जो आता है मणिपाल, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोबैक्टीरियल ग्रुप एक्टिंग एज बायो फर्टिलाइजर, तो क्या आंसर है इसका करेक्ट, एनाबिना, इसको यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरियल में एनाबिना नॉस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ जीन बैंक जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में इसको स्टोर किया जाएगा, सीड के फॉर्म में, हाँ कर सकते हैं, वेजिटेटिव मटेरियल के भी फॉर्म में कर सकते हैं, इसलिए आंसर दोनों आना चाहिए इसका, दोनों भी फॉर्म में इसको स्टोर कर सकते हैं। देन व्हाट इज मीन बाय ट्रिटिकल, इज इंटरजेनिक हाइब्रिड, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वीट, न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्शन, वाइल्ड एंसेस्ट्रल वैरायटी, तो ये इंटरजेनिक हाइब्रिड है पर मॉडिफाइड फॉर्म है ये वीट का, क्योंकि ट्रिटिकल एस्टिडियम किसका नाम है, वीट का, तो ये वीट का मॉडिफाइड फॉर्म है। देन IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका बेसिस क्या है, किसके ऊपर ये बेस्ड है, तो इसके अंदर हमको पता है बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल सभी मेथड इसके अंदर यूज करते हैं, इसलिए आंसर आना चाहिए दिस वन। IPM बोले तो सभी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सभी आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉसिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव इज बेनिफिशियल बिकॉज इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ जीन्स ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस, हाँ हो गए, pest resistance also possible, drought resistance is also possible, hence the answer will be 4, all are matching. Genetic erosion is due to deforestation, shifting cultivation, adoption of genetically uniform
वैराइटीज ऑफ क्रॉप, तो ये सभी की वजह से होता है जो जेनेटिक इरोजन है, मतलब जीन्स लॉस, क्योंकि हर बार ये सभी स्ट्रैटेजी की वजह से होगा ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो गॉट रेजिस्टेंस टू फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस फ्रॉम, ये इससे, ये जो सोलानम डेमिसम नाम दिया था एग्जाम्पल वहाँ पर। विच आर द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल कौन सा है, यहाँ पर ये पूछा है, तो कौन सा रहेगा, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, बीजी एंड वैम, ग्रीन मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। तो करेक्ट आंसर मैच जो होगा वो ये रहेगा, ब्लू ग्रीन algae, that is BGA, or VAM means vesicular or vascular mycorrhiza, mycorrhiza। तो इसलिए आंसर आएगा दिस वन, इनको बायो फर्टिलाइजर बोलकर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, शूट टिप कल्चर इज प्रीफर्ड फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ जर्म प्लाज्म, तो क्यों यूज किया जाएगा ये, दे आर मोर स्टेबल, these are easier to regenerate, they produce virus free clone plants, all three statements are correct। तो करेक्ट है क्योंकि मोर स्टेबली प्रोड्यूस होगा, जनरेट करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए आंसर आएगा दिस वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द लैटेक्स ऑफ विच प्लांट इज सब्जेक्टेड फॉर पैरा रबर, पैरा रबर के लिए किसको यूज़ किया जाएगा, विंग्ड बीन, जोजोबा को नहीं यूज़ किया जाता, इसको भी नहीं किया जाएगा, गुआनोलाइन, हाँ इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे रबर मिलेगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ये, क्योंकि इसके अंदर थिक ये रहता है लैटिक्स के जैसे सब्सटेंस। उसके बाद देखिए नॉरिंटेन इज ए जीन, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हो चुका था, बोला था मैंने आपको कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर व्हीट, क्योंकि राइस के लिए कौन सा आता है, डी जीओ वू जेन, वू जेन, ये टोमेटो के लिए नहीं, स्मट रेजिस्टेंस, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, द यूज ऑफ प्रेडेटर टू कंट्रोल द पेस्ट इज कॉल्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होगा, केमिकल कंट्रोल नहीं है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करेक्ट आंसर, आर्टिफिशियल कंट्रोल भी नहीं रहेगा, क्योंकि पेस्ट को कंट्रोल करें ना इंसेक्ट को विद द हेल्प ऑफ इस बायोलॉजिकल कंट्रोल से, तो अगर केमिकल यूज किया जाता फिर केमिकल कंट्रोल नाम आता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, अब यहाँ पर कौन सा पेयर मिसमैच हो रहा है, अजोस्पिरिलम मेस करेक्ट है, माइकोराइजा पाइन, वैम माइकोहर्बिसाइड ये रॉन्ग है मैच, रोटेनॉन नेचुरल इंसेक्टिसाइड ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पर ये मैच जो था वो मिसमैच है, माइकोहर्बिसाइड, वैम अभी बोला मैंने आपको, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये क्या करते रूट के साथ फंगल एसोसिएशन बनाते हैं, जब फंगस कॉर्टेक्स के अंदर पेनिट्रेट होगा तो वहाँ पर अर्बस्कुल प्रोड्यूस करेगा, जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलने में हेल्प होगी, दैट इज गुड। तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 में, माइक्रोराइजी वर्क एस, तो अभी बोला मैंने आपको एक्ट एज रूट हेयर्स इन एडवर्स कंडीशन, तो इसके लिए काम को आते हैं, बाकी ऑप्शन मैच नहीं होगी, मॉडिफाइड लीफ, मैकेनिकल सपोर्ट और मॉडिफाइड स्टेम, मोदी। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर, क्रोटोलारिया जूसिना इसको तो यूज़ किया जाता है, बिगना साइनेंसिस, साइनेंसिस ये वर्ड जहाँ पर भी आता है मतलब चाइना, साइना मीन्स चाइना, बारसिन ये भी है, तो इसलिए आंसर आना चाहिए इसका 4। उसके बाद देखिए विच ग्रुप इज नॉट रिलेटेड टू पेट्रो प्लांटेशन, इसमें से किसको यूज़ नहीं किया जाएगा, इफ्रोबिएसी है, अस्कलपेडिसी है, अपोसाइनेसी है, अस्टरेसी है, लेग्यूमिनेसी नहीं है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में वहाँ पर इनका काम है, तो ये नहीं रहेगा। Which country has been successfully used alcohol as motor fuel, तो अभी हो गया सबसे ज़्यादा अल्कोहल यही प्रोड्यूस कर सकता है ब्राज़ील, तो इन्होंने ही ट्रायल्स स्टार्ट किए थे, बाकी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, a gene bank is a place where valuable plant material is preserved in a viable condition of gene bank is a part of in situ conservation, in situ का मतलब होता है ऑन साइट और एक्स सिटू का मीनिंग होता है ऑफ साइट,
जैसे कोई एनिमल है जंगल में मिल रहा है, उनको वहीं पे कंजर्व करना कहा जाता है ऑन साइट। और सपोज हमने जू बनाया और उन एनिमल को ला के हमारे यहाँ पर उनको हम कल्चर कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, तो वो हो गया ऑफ साइट। तो और बोथ एक्स टू इन टू ये नहीं रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दिस वन एक्स टू। क्योंकि जीन बैंक में क्या करें, हम जीन निकाल रहे हैं, लैब में ला रहे हैं, उससे ग्रो कर रहे हैं, तो ये होगा ऑफ साइट एक्स टू। क्योंकि डायरेक्टली हम एनिमल में नहीं उसके जीन लाकर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बैम रिप्रेजेंट, ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन लिखा था, क्योंकि रूट को प्लांट को भी बेनिफिट है और ये जो फंगस है इसको भी बेनिफिट है, क्योंकि इसको रहने के लिए शेल्टर मिलता है और प्लांट को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन फ्रॉम फंगस। तो दोनों को जब बेनिफिट है तो उसी को क्या कहा जाएगा, सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। ये मैच नहीं होता, ये भी मैच नहीं होगा। सैप्रोफाइटिक मतलब सैप्रो मीन्स डेड एंड डिकेइंग, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ये नहीं होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल यूज ऑफ ग्वालुई, ये अभी थोड़ी देर पहले ये नेम हो गया था और मैंने बोला आपको कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो कहाँ पर यूज़ होगा ये हाई क्वालिटी का रबर प्रोड्यूस करता है, पैरा रबर। क्वेश्चन नंबर 30, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक्सेप्ट, इसमें से क्या नहीं रहेगा, यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैराइटीज है, use of crop rotation, this is also there, biological mechanical control, this is also there, regular use of high dose of pesticide from beginning to the end of crop, ये नहीं होगा, देखो beginning to end ये नहीं होगा, तो इसलिए आंसर आएगा दिस वन। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर पूछा है द मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विच इज यूज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटीज, तो इसके लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, बायोन्यूट्रिएंट केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करेंगे ग्रीन मैन्योर को, क्योंकि देखो इससे सॉइल को कोई हार्म नहीं, ऑर्गेनिक है, तो ये अच्छा रहेगा ग्रीन मैन्योर। और उसके एग्जांपल बोले मैंने अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्रॉप विद रिकैल्सिट्रेंट सीड इंक्लूड, रिकैल्सिट्रेंट तो इसके अंदर किसको यूज़ किया जाता है, रबर और पाम इसको यूज़ किया जाता है, इनको भी यूज़ किया जाता है, इनको भी यूज़ किया जाता है, तो ये सब रहेंगे, इन सभी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए हेम्प फाइबर बिलोंग टू, फाइबर रहते हैं इसके, हेम्प फाइबर, तो इसको कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो लाइनम, कैनाबिनस सटावस, कोरकोरस, हिबिस्कस, तो करेक्ट आंसर रहेगा दिस वन, कैनाबिनस सटावस, इससे ये बिलोंग करते हैं, ये जो हेम्प है अंबाड़ी बोलते हैं इसको। देन फाइकस इलास्टिका इंडियन रबर प्लांट, ये किसका मेंबर है, तो ये अगर मेंबर देखा जाए तो इसमें से इस फैमिली का मोरियसी, क्योंकि इन फैमिली को बिलोंग नहीं करता, ये पेट्रो प्लांट है, पापावेसी अलग है। क्वेश्चन नंबर 35, थ्री क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्लोबल फूड प्रोडक्शन आर, ग्लोबल पूरा वर्ल्ड वाइड बोला है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कौन सा यूज़ होता है, 50% से ज़्यादा तो राइस ही यूज़ होता है, फिर व्हीट खाया जाता है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद मेस, तो इसलिए आंसर आना चाहिए दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सोमैक्लोनल वेरिएशंस अपीयर इन, ये किस में दिखेंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, नो, प्लांट ग्रोइंग इन हाईली पोल्यूटेड कंडीशन, अपोमिक्टिक प्लांट, अपोम इज फास्ट, मिक्टिक मतलब समझ में आता है, टिश्यू कल्चर रेस प्लांट, तो ये इसके अंदर दिखेंगे, क्योंकि जब टिश्यू कल्चर देखा था वहाँ पर मैंने आपको बोला था टिश्यू कल्चर रेस प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको एंड इट कंटेन रेजिस्टेंस जीन फॉर, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस जीन किसके लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंट और फॉरेस्ट रेजिस्टेंट, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। टोबैको इंपॉर्टेंट क्रॉप है, देखिए कैश क्रॉप, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये किसकी वजह से होगा, तो ये अगर देखा जाए तो ये किसकी वजह से होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप और नन, तो इसके वजह से होगा, क्योंकि इस वर्ड से समझ में आता है, देखो इन मतलब एक प्लांट के अंदर, ब्रीड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, तो सेल्फ पॉलिनेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, ये सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इन ब्रीडिंग के लिए मेनली क्या लगता है, सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन,
और सेल्फ पॉलिनेशन की जगह अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका क्या होगा, सेपरेशन होगा। उसके बाद देखो पोमैटो इज, पोमैटो क्या है यहाँ पर ये पूछा है और इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है। सोमैटिक हाइब्रिड, अलो पॉलीप्लॉइड, मिनरल न्यूट्रिएंट या वन और टू। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसके अंदर? अगर ये देखिए, देखो पोमैटो क्या है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से। तो जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिड भी है, अलो पॉलीप्लॉइड भी है, तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए इसका, दिस वन, 4, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो एम्ब्रियोइड्स, एम्ब्रियो लाइक, तो एम्ब्रियोइड्स कैसे रहेंगे, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो, नॉन फंक्शनल एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो और न्यू वैरायटी ऑफ एम्ब्रियो। तो ये सब देखें तो इसमें डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये बनेंगे नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, प्लांट पार्ट यूज फॉर द कल्चर, कल्चर के लिए जो प्लांट पार्ट यूज हो रहा है उसको क्या कहेंगे, तो सियॉन, स्टॉक, एक्सप्लांट और कैलस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर कल्चर बोलने की जगह अगर टिश्यू कल्चर बोले तो आंसर आना चाहिए दिस वन, एक्सप्लांट। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर टेक्निक इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। और सियॉन स्टॉक कहाँ पर आता है, ये देखिए, ये जो रूटेड प्लांट होता है, जब हमको आर्टिफिशियल प्रोपागेशन करना, तो जो प्लांट रूटेड की वाला, ये प्लांट है सपोज, ये इसके रूट है, दिस इज रूट, और ये है प्लांट, और ये प्लांट का था स्टेम। तो जो रूटेड प्लांट रहता है उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक। और इसके ऊपर कुछ और नई वैरायटी बिठाना है तो इसको ऐसा वी शेप में कट करेंगे, और इसके ऊपर दूसरा प्लांट जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर, इसको लाकर हम यहाँ पर क्या कर दिए, इसको यहाँ पर लगा दिया ऐसा। तो जो फॉरेन पार्ट लाए दूसरे प्लांट का उसको कहा जाएगा सियॉन। तो ये सियॉन, ये है स्टॉक। और कैलस मतलब क्या रहता है, तो ये मैंने बोला आपको, अनऑर्गेनाइज्ड मासा पैरेन्काइमेटस सेल। इसको कहा जाएगा कैलस, जो टिश्यू कल्चर में प्रोड्यूस होगा। एक्सप्लांट को जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखेंगे तो न्यूट्रिएंट मीडियम कंज्यूम करेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम कम होता जाएगा और इसकी साइज बढ़ती जाएगी, सेल डिवीजन भी होगा। और फिर जहाँ पर अनऑर्गेनाइज मास मतलब रूट और स्टेम कुछ भी नहीं दिख रहा है, थैलस के जैसा स्ट्रक्चर, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल है, तो उसको कहा जाता है कैलस। और कैलस के बाद क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, रूट और शूट ये डेवलप होना स्टार्ट होगा, प्लांटलेट्स तैयार होंगे, फिर उसको नर्सरी में ट्रांसफर करेंगे या ग्रीन हाउस में। नेक्स्ट, गायनोजेनिक हैप्लॉइड, गायनो मीन्स फीमेल, जेनिक मीन्स बर्थ, हैप्लॉइड प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू, तो ये किससे मिलेंगे हमको, तो ये गायनोजेनिक मतलब गायनोसियम, गायनोसियम मतलब वहाँ पर रहेगा ओविल, क्योंकि गायनोसियम का यूनिट जो है वो है स्टिग्मा, वहाँ कार्पेल बोलेंगे, गायनोसियम का जो यूनिट है वो है कार्पेल। और कार्पेल में क्या रहेगा, स्टिग्मा, स्टाइलम, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या रहेगा, ओविल, कार्पेल और पिस्टिल बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर रहेगा ओविल कल्चर, बाकी सब मैच नहीं होता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, अब यहाँ पर देखो क्या पूछा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या रहता है, तो मैंने आपको बोला है कि जो प्लांट की सेल है उसमें से सेल वॉल माइनस वन, सेल वॉल, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। और प्लांट में से सेल वॉल अगर निकालना है तो हमको एंजाइम कौन से लगेंगे, सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेस। ये तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है ये करने का पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, तो रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये भी करेक्ट आता है। रैपिड ग्रोथ नहीं, ये इनकरेक्ट रहेगा, ये पूरी तरह से मैच नहीं होता। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मैच होगा, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल अलोपॉलीप्लॉइड ये भी ऑप्शन मैच होगा, तो मतलब ऑप्शन ये मैच होगा 4, दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा है देखिए एग्जाम में 2-3 टाइम्स पूछे वाला। क्रायो का मीनिंग होता है कोल्ड, और प्रिजर्वेशन का मतलब आपको पता है, तो कोल्ड कंडीशन में प्रिजर्व करना, ये इसका मीनिंग रहेगा। मतलब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ -196 डिग्री सेल्सियस को हम जो चीज़ों को स्टोर करते हैं उस टेक्निक को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। सो क्रायो प्रिजर्वेशन इज व्हाट इट इज, ऑप्शन डी वाला, प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग बीइंग केमिकल थ्रू गैसेस, preservation at very low temperature, very low temperature means -196 degree Celsius with the help of
लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, और हाई टेम्परेचर ये गलत आता है। उसके बाद देखिए वायरस फ्री प्लांट्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग, कैलस कल्चर और शूट टिप कल्चर, सस्पेंशन कल्चर। तो ये करना हमको शूट टिप कल्चर, या इसी को क्या बोलेंगे हम अपाइकल मेरिस्टेम कल्चर, या अपाइकल मेरिस्टेम को हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम वायरस, फ्री फ्रॉम वायरस और पैथोजन, वायरस जिसका मीनिंग होता है लिक्विड पॉइजन, वायरस का मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 46, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड फॉर शुड डिफ्रेंशिएशन। तो शुड डिफ्रेंशिएशन के लिए 2,4-D को नहीं यूज़ किया जाएगा। ये 2,4-D मतलब डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ऑक्सीन। बेंसिल अमानो एसिड, बेंसिल अमानो प्यूरेन, इसको यूज़ किया जाता है, तो ये आंसर करेक्ट रहेगा। बाकी डी फॉर्मुलेस को यूज़ नहीं किया जाता, जिब्रेलिक एसिड को भी यूज़ नहीं किया जाता। लास्ट स्लाइड है ये। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्चर इज यूज्ड इन सम इंटर-स्पेसिफिक क्रॉस वेयर एंडोस्पर्म ऑफ डेवलपिंग हाइब्रिड्स of seed degenerate very early, मेरिस्टेम कल्चर, शूट टिप कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर और एंथर कल्चर। तो क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन रहेगा दिस वन, एम्ब्रियो कल्चर, जहाँ पे एंडोस्पर्म ऑफ डेवलपिंग हाइब्रिड सीड डीजेनरेट वेरी अर्ली, तो इसके लिए हम करते हैं एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो रेस्क्यू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इन हार्डनिंग प्रोसेस, इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लांटलेट प्लेस्ड इन द रेडिस्ट लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी फॉर शॉर्ट टाइम, प्लांटलेट प्लेस्ड इन फेवरेबल कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम, ट्रांसफर ऑफ न्यू फ्रेश मीडियम, प्लांटलेट इज प्लेस्ड इन हाईलाइट इंटेंसिटी। तो करेक्ट आंसर रहना चाहिए प्लांटलेट इज प्लेस्ड इन रेडिस्ट लाइट, कम लाइट रहेगी और हाई ह्यूमिडिटी रहेगी फॉर शॉर्ट टाइम, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हार्डनिंग। Then next, the process of transferring the cell culture from old medium to fresh culture medium is known as, ये मैंने एक्सप्लेन करते वक्त आपको बोला है, तो ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब क्या प्रोसेस होता है इससे, सब कल्चर। बाकी स्टेरिलाइजेशन तो हमको पता है, न्यूट्रिएंट मीडिया, एक्सप्लांट, ये जब बनाते हैं, या जो ग्लास वेयर्स हम यूज़ कर रहे हैं टिश्यू कल्चर में, उनके लिए ये टेक्निक यूज़ होती है स्टेरिलाइजेशन, जिसके लिए हम हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव ये यूज़ करते हैं, या तो केमिकल यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल लाइक दैट। इंट्रोडक्शन अलग वर्ड है। सस्पेंशन कल्चर मतलब हमको पता है लिक्विड यूज़ करेंगे हम, सस्पेंशन कल्चर वहाँ पे न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, अगार का रोल नहीं रहेगा वहाँ पर, तो ये। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 50 है, बट इसके पहले 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो 50 + 40 इक्वल टू टोटल, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ प्लांट, कैसे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट, जीन लाइब्रेरी, बाय स्टोरिंग सीड्स और बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आना चाहिए बाय ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट। सबसे बेस्ट मेथड तो ये है, क्योंकि वाइल्ड रिलेटिव मतलब क्या, ये इनके अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ, म्यूटेंट नहीं है ये, तो इनको हम ग्रो कर सकते हैं नेचुरल हैबिटेट में। अगर कुछ डिफेक्ट रहा, कुछ रहा, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, स्टेरिलाइजेशन है, रिप्रोडक्शन लॉस हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तब हम टिश्यू कल्चर यूज़ कर सकते हैं, और जीन प्रिजर्व करना जर्म प्लाज्म ये करेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा टोटल 90 क्वेश्चंस, और हार्ड वर्क करते रहिएगा कंटिन्यूसली, और अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और बी फोकस रहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, लव इज लाइफ, हेटेड इज डेथ। तो फोकस माइंड, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाइएगा, कंटिन्यूसली अपना स्टडी कांस्टेंट रखते जाइएगा, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। एवरीडे रीड करते जाइएगा, लाइन टू लाइन, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट।